morning students. How are you beta? I hope you all are very well and doing your work regularly and properly. Students, make a timetable according to school and do your work on regular basis. Today we will discuss chapter number 8 from our book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Hack Driver. Hack means a horse-drawn vehicle. A horse drawn vehicle. Written by Sinclair Lewis. He was born on 7 January 1885. He died on 10 January 1951. He was an American novelist, short story writer and playwright. Students, he became the first American to win Nobel Prize in literature. In 1930 लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले अमेरिकन बने. Let's discuss the characters of this story. Number 1, narrator. He is a young lawyer who is gullible. Gullible means भोला भाला, सीधा साधा. The hack driver makes a fool out of him. Oliver Lutkins, the hack driver. Oliver Lutkins है, वही hack driver है. He is a dishonest man who takes others. He is a great storyteller. He takes up the name of Bill Magnuson to fool the lawyer. Number 3, Lutkins' mother. She is a terrifying woman. She is 9 feet tall and 4 feet thick or 4 feet wide. She is quick as a cat. Students, let's take an introduction of this chapter. This story is about a hack driver who made fool of a young lawyer who came to serve summons to him. Hack driver was needed in the court for a case, but he ignored all the letters sent by the law firm. Now the law firm sent a young lawyer who was an assistant clerk in that firm, but the hack driver take the lawyer, the narrator all around the village in search of Oliver Lutkins and made fool of him and did not let him know that he was himself the man who the narrator was searching. Students, let's discuss the story from our book line by line. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. Serve means क्या? To issue summons, court orders. एक यंग लॉयर है, युवा वकील है जो कि आता है एक कस्बे में, एक विलेज में सम्मन इश्यू करने के लिए, सम्मन देने के लिए एक हैक ड्राइवर को जिसका नाम ओलिवर लटकिंस है. ए फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिंस. एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाला हैक ड्राइवर है. वो लटकिन की खोज में, लटकिन को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पूरा गांव में उसको चक्कर लगवाता है. Does he find him? क्या जो लॉयर है वो ओलिवर लटकिंस को ढूंढ पाता है? No. When he came first time, he was unable to find Oliver Lutkins because the hack driver who was taking him in search of Oliver Lutkins was himself the person. Who is Lutkins? Lutkins कौन है? Lutkins is himself the hack driver. Read and find. Question 1. Why is the lawyer sent to New Million? Lawyer को क्यों भेजा गया था New Million? The lawyer is sent to New Million to serve summons a person named Oliver Lutkins who was needed in the court in a case. What does he first think about the place? The lawyer belongs to village and now he was doing job in city and he was fed up with his city life. That's why he thinks that now he was going to a village to serve summons to a person and this village will be a very sweet village.
Who befriends him? Where does he take him? A hack driver who tells his name Bill Magnuson befriends him. He takes him all around the village in search of Lutkins. What does he say about Lutkins? He tells the narrator about Lutkins that it is very hard to find Lutkins because if he take some money from anyone, he will not give anyone back, and it is very hard to find him. Let's start the chapter now. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनर्स के साथ, बच्चों यहाँ पर ऑनर्स की स्पेलिंग तो वही है बट मीनिंग डिफरेंट है. ऑनर्स जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर एक तो सिंपल कोर्स होता है, पास कोर्स होता है, एक ऑनर्स के साथ होता है. जो ऑनर्स वाला कोर्स होता है वो थोड़ी हाई लेवल की स्टडी होती है. तो यहाँ पर जो नरेटर है उसने ग्रेजुएशन की है ऑनर्स में. आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क. आई कौन है? नरेटर जो कि लॉयर है. वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन जाता है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. ब्रीफ्स मीन्स क्या? समरी ऑफ केसेस, और लीगल लॉफुल. अब नरेटर है वो बताता है कि मुझसे नहीं बनवाए जाते थे लॉ के केसेस, लॉफुल जो केसेस थे उनकी कोई समरी मेरे को तैयार नहीं करवाई जाती थी. बट टू सर्व समन्स, परंतु मेरे को काम सौंपा गया था कि मैं सम्मन इश्यू कर करके देकर के आऊं सम्मन जिन लोगों के हैं. लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव. और ये काम कैसे था? डिटेक्टिव मीन्स कहता है सीक्रेट एजेंट. और ये काम ऐसे था जैसे कि कोई सीक्रेट एजेंट गुप्तचर चुपचाप कोई काम करता है. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. मुझे जाना पड़ता था जो डर्टी गंदे कॉर्नर थे, शैबी कॉर्नर्स थे शहर के, वहां पर टू सर्च आउट माई प्रे. विक्टिम्स मीन्स क्या है? प्रे. सीक आउट मीन्स क्या? सर्च आउट. किस लिए जाना पड़ता था? जिस भी व्यक्ति को सम्मान देने होते थे उसको ढूंढने के लिए वहां पर गंदे शहर के कोनों में भी नरेटर को विजिट करनी पड़ती थी. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. यहाँ तक कि कुछ बड़े और कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति होते थे वो मेरे को पीट भी देते थे. कौन किसको पीटता है? नरेटर है वो सम्मान देने जाता है, और यदि कोई बड़ी पार्टी है तो वो लोग उसको चकमा दे देते हैं, उसकी पिटाई तक भी कर देते हैं. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क. अनप्लेजेंट मीन्स क्या? वल्गर. पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट वर्क लगता है उसको ये काम. और नरेटर है उसको डिसलाइक करता है, हेट करता है इस काम से. एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. रिवील्ड मीन्स क्या? डिस्क्लोज्ड. और दूसरी तरफ जो शहर की लाइफ है वो ये बात मेरे को रिवील करती है, उजागर करती है. आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन. कंसिडर मीन्स क्या है? थॉट ओवर. यहाँ तक कि मैंने सोचा, विचार किया अपने घर भाग जाने का. फ्लीइंग मीन्स क्या? रनिंग अवे. घर भाग जाने का, अपने कस्बे में चले जाने का. वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर. जहां पर मैं एक वास्तविक वकील का काम कर सकता था. रियल लॉयर क्यों कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर उसको कोई वकील का काम नहीं सौंपा गया. उसको क्या है कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह जाओ, लोगों को सम्मान देकर के आ जाओ. और जो नरेटर है वो चाहता है कि वो लॉयर बने, वकील बने, केसेस को सोल्व करे, हैंडल करे, जबकि उसको ये काम सौंपा नहीं गया है. इसलिए वो चाहता है कि वह अपने कस्बे में जाए, अपने गांव में जाए, वापस होम टाउन चला जाए, वहां पर वह वास्तविक वकील बन सकता है. राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. कि बिल्कुल जाते ही वह अपने गांव में एक वकील बन सकता है. ये जो अनप्लेजेंट, जो वल्गर ट्रेनिंग पीरियड है उसको किए बगैर ही वो वहां पर जाकर के वकील बन सकता है. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. Rejoice means क्या? Felt happy. इसलिए मैं बहुत खुश हो गया एक दिन जब उन लोगों ने मेरे को भेज दिया 40 मील की दूरी पर स्थित एक गांव में. टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन. एक कस्बा जिसका नाम न्यू मिलियन था. टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस. एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जिसका नाम था ओलिवर लटकिंस. वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस. हमें इस व्यक्ति की जरूरत थी एक कानून के केस में, एक विटनेस की तरह से, एक गवाह के रूप में. विटनेस मीन्स क्या? एविडेंस, गवाह, प्रूफ के रूप में एक कानून के केस में. एंड ही इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स. इग्नोर्ड मीन्स क्या? नेग्लेक्टेड.
और वह सारे हमारे लेटर्स को नेग्लेक्ट कर चुका था। जितने भी लेटर्स उसको सेंड किए गए थे उनका उसने कोई जवाब नहीं दिया था। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. परंतु जब मैं जाकर के पहुंचा न्यू मिलियन में, तो जो मेरी बहुत ही उत्सुक, ईगर, कीन जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, होप्स थी, वो सब पानी में तैर गई, वो सब बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। क्या उम्मीदें थी कि ये बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा विलेज होगा, वह सीवियरली डिसअपॉइंटेड, सीवियरली मींस वायलेंट, अत्यधिक रूप से डिसअपॉइंटेड, उदास कर दिया मेरी उन उम्मीदों ने। क्यों? क्योंकि वो व्हेन द narrator is traveling in the train, he is imagining that when I reached the village, I found it a very sweet village, but when he reached there, he found a different sight there. Its streets were rivers of mud. इसकी जो गलियां थी वो कीचड़ से भरी हुई थी, रिवर्स, नदियां जैसे बह रही हो कीचड़ की। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और वहां पर रोज मीन्स क्या, लाइन्स, कतारें, कतारें थी वुडन शॉप्स की, लकड़ी की बनी हुई दुकानें थी। आइदर पेंटेड ए शोर ब्राउन, शोर मीन्स क्या, डार्क, या तो उनके ऊपर पेंट किया गया था गहरे भूरे रंग का, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, बेयर मीन्स क्या, नेक्ड, या बिना किसी पेंट के थी। कुछ दुकानें ऐसी थी जिनके ऊपर गहरे भूरे रंग का पेंट था, कुछ ऐसी थी जिनके ऊपर किसी कलर का पेंट नहीं था, तो दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. Agreeable means है pleasant. जो एक दृश्य था वहां का, जो सुखद था, सुखदायक था, वो क्या था, एक हैक ड्राइवर जो कि मुझे मिला था स्टेशन के ऊपर। He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. Well, about 40 years का था, लाल चेहरे वाला था, मीन्स हट्टा कट्टा था, cheerful, हैप्पी था, एंड थिक अबाउट द मिडल, और लगभग मध्यम चौड़ा मोटा था। नाउ हियर राइजेस ए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द हैक ड्राइवर इन योर ओन वर्ड्स। द हैक ड्राइवर इज अबाउट 40, he was red faced, he was cheerful person, he was middle thick. His working clothes were dirty and well worn. उसके जो काम के कपड़े थे वो डर्टी थे, मैले कुचले थे, परंतु वेल वोर्न थे, अच्छे से पहने हुए थे उसने। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और उसका जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वो बहुत ही फ्रेंडली था, मैत्रीपूर्ण था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, उसको देखते ही आपके मन में एक भावना आ सकती है कि वह लोगों को बहुत अधिक पसंद करता था। I told him to find a man named Oliver Lutkins. मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैंने उसको बताया कि एक व्यक्ति को जिसका नाम ओलिवर लटकिंस है। लटकिंस क्वेश्चन मार्क लगाए, देखिए बच्चों यहाँ पर, मीन्स क्या है, लटकिन को ढूंढ रहे हो। आई saw him around here about an hour ago. Here I is a hack driver. I कौन है यहाँ पर, हैक ड्राइवर है। कहता कि उसको मैंने लगभग 1 घंटे पहले यहीं पर देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, उस इंसान को पकड़ना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, इधर उधर आता जाता रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। प्रोबेबली मीन्स क्या है, परहैप्स, शायद, और पोकर मीन्स क्या है, एक कार्ड गेम होता है, ताश से का गेम कह सकते हो, पत्तों से खेले जाने वाला गेम होता है, जुए का खेल भी कह सकते हो। संभावना है कि अब वह कोशिश कर रहा होगा एक पोकर का गेम स्टार्ट करने की, जो फ्रिज की दुकान है, फ्रिज एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पर, जो फ्रिज की दुकान है उसके पीछे। I will tell you why. Is there any hurry about locating Lutkins? मैं तुम्हें बता दूंगा लड़के, तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ओलिवर लटकिन को ढूंढने की। कौन पूछ रहा है, किससे, हैक ड्राइवर नरेटर से पूछ रहा है। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, मुझे शहर वापस जाने के लिए दोपहर की ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, मैं बहुत ही गुप्त रख रहा था, अपनी बात को छिपा करके रख रहा था, मैं नहीं बताना चाहता था कि मेरा क्या पर्पज है उससे मिलने का। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गोट ए है, मैं तुम्हें बताऊंगा हम क्या करेंगे, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। I will get it out and we can drive around together and find Lutkins.
मैं इसको लेकर के आता हूँ। इट कैन हैक, घोड़ा गाड़ी, मैं इसको लेकर के आऊंगा और हम दोनों एक साथ चक्कर लगाएंगे, ढूंढेंगे लटकिंस को। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मैं ज्यादातर जगह जानता हूँ जहाँ पर लटकिंस है वो मंडराता है, आता जाता है या रहता है। हैंग्स आउट मीन्स रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. वह इतना ओपन, खुले दिल का था और क्या था, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण था कि मैं चमक उठा उसकी जो वार्म थी, हीट थी, गर्माहट थी उसके फ्रेंडली मैनर की, उससे कि बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा मेरे दिल को फील हुआ उससे बातें करके। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, मैं जानता था कि वास्तव में, ऑफ कोर्स क्या, सर्टेनली, निश्चित तौर पर, वास्तव में तो वह अपना बिजनेस करना चाहता था, अपना व्यापार करना चाहता था। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, परंतु जो उसकी काइंडनेस थी वो रियल थी, जो वो दयालुता शो कर रहा था वह भी वास्तविक ही थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, मैं खुश हो रहा था, ग्लैड मीन्स क्या, हैप्पी, मैं खुश था कि जो फेयर मनी है, किराए के जो पैसे हैं वो एक अच्छे इंसान के पास जाएंगे। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, मैंने अरेंज किया, मैनेज मीन्स क्या, अरेंज, मैंने अरेंज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, बार्गेन करके, बार्गेन में क्या, सेटल द अमाउंट, सेटल द प्राइस, पैसे फिक्स करके उसके साथ बार्गेन की और पैसे फिक्स किए थी मैं उसको पर घंटे के $2 दूंगा। एंड देन ही brought from his house nearby a short large black box on wheels, और फिर वह अपने घर से जो कि नजदीक था वहां से एक छोटा सा काले रंग का बॉक्स जो कि पहियों के ऊपर था उसको लेकर के आया। ही रिमार्क्ड, उसने कहा, वेल यंग मैन हियर इज द कैरेज, ठीक है यह व्यक्ति, गाड़ी आ गई है। एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसकी बड़ी सी मुस्कान ने मुझे उसका पुराना दोस्त बना दिया। मीन्स द नरेटर इज फीलिंग दैट ही नोज द पर्सन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। These villagers are so ready to help a stranger, अब नरेटर अपने मन में सोच रहा है कि ये जो गांव वाले होते हैं ना, हमेशा तैयार रहते हैं कोई भी अजनबी आ जाए उसी की हेल्प करने के लिए। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, अब जो हेड ड्राइवर है उसने पहले ही जो मेरा काम था लटकिन को ढूंढने का वो अपना काम बना लिया था। He said, I don't want to interfere यंग फेलो, इंटरफेयर मीन्स क्या, मेडल, हस्तक्षेप करना। उसने कहा कि मैं बीच में तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी बातों में दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूँ युवा साथी, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लटकिंस, परंतु मेरा अंदाजा है कि तुम कुछ पैसे लेने के लिए आए हो ओलिवर लटकिंस से। ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट, वह कभी किसी को एक सेंट भी वापस नहीं देता है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपए पैसे होते हैं वैसे ही डॉलर और सेंट होते हैं। He still owes me 50 cents on a poker game, उसने मेरे से भी उधार ले रखे हैं 50 cents एक पोकर के गेम में, जुए के खेल में लिए थे। I was fool enough to play with him, मैं भी बहुत मूर्ख था कि मैं उसके साथ खेला था। He is not really bad, but it's hard to make him part with his money, वह वास्तव में बुरा नहीं है। किसके बारे में बोल रहा है, हेड ड्राइवर, वो ओलिवर लटकिंस के बारे में कह रहा है कि वास्तव में तो बुरा इंसान नहीं है, परंतु ये मुश्किल है कि उसको उसके पैसों से अलग किया जाए। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. यदि आप कोशिश करोगे उससे अपने पैसे वापस लेने की इन फैंसी क्लोथ्स में, इतने अच्छे कपड़ों में, तो वह चुप जाएगा, चला जाएगा कहीं और उसे संदेह हो जाएगा। सस्पिशियस मीन्स क्या, डाउटफुल, उसे संदेह हो जाएगा और वह भाग जाएगा तुम्हें देखते ही। If you want, I will go into fridge and ask फॉर हिम, यदि तुम चाहो तो मैं, जो ये फ्रिज नेम आया है उसी को कह रहा है कि जो फ्रिज की शॉप है वहां पर पहले मैं जाता हूँ और उसको ढूंढता हूँ, उसके बारे में पूछता हूँ। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे से ही मेरे ऊपर नजर रख सकते हो। आई लव हिम फॉर दिस, मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा वह इंसान। कौन किसको अच्छा लगा, नरेटर को, हेड ड्राइवर। By myself, I might never have found Lutkins, क्यों, क्योंकि मैं मेरे द्वारा लटकिन को कभी भी नहीं ढूंढ पाता।
With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. हैक ड्राइवर की जानने वाली, जान पहचान वाली मदद से मुझे विश्वास हो गया था कि अब मैं ओलिवर लटकिन को ढूंढ पाऊंगा. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. मैंने उसे अपने विश्वास में लिया. मैंने विश्वास में लिया कि ये व्यक्ति मेरी बात लीक नहीं करेगा और मैंने उसको बताया कि मैं ओलिवर लटकिन को कोर्ट के जो सम्मन्स है, कोर्ट के ऑर्डर से वो देना चाहता हूँ. That the man had refused to be a witness. कि ये जो ओलिवर लटकिन्स है ये मना कर चुका है एक विटनेस बनने से, एविडेंस बनने से, गवाह बनने से. When his information would have quickly settled our case. जबकि उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो हमारे केस को फटाफट सोल्व कर देगी. The driver listened earnestly. Earnestly means क्या? Very seriously. जो ड्राइवर है, हैक ड्राइवर, बड़ी ध्यान पूर्वक नैरेटर की बातों को सुनता है. At the end, he hit me on the shoulder. और आखिर में वह मेरे कंधे पर मारता है. And laughed और हंसा. Well, we will give brother Lutkins a little surprise. ठीक है, हम भी थोड़ा सा सरप्राइज देंगे लटकिन को. Let's start driver. आओ चले ड्राइवर. Most folks around here call me Bill और Magnusson. Folks means क्या? People. अब जो हैक ड्राइवर बता रहा है कि ज्यादातर लोग यहाँ के मुझे या तो बिल कहते हैं या मैग्न्यूसन कहते हैं. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. और जो मेरा व्यापार है उसे कहा जाता है, उसका नाम है विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज. ठीक है बिल, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? प्रोसीड मीन्स क्या? टू गो अहेड. आगे बढ़ सकते हैं फ्रिज की दुकान की तरफ. यस, Lutkins is just as likely to be there as anywhere. हाँ, लटकिंस की वहीं होने की पूरी संभावना है कहीं और होने की बजाय. Plays a lot of poker. अत्यधिक गेम खेलता है. He is good at deceiving people. लोगों को ठगने में. Deceiving means क्या है? चीटिंग, धोखा देने में, ठगने में बड़ा माहिर है. Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty. Admire means क्या है? Praise. और टैलेंट मीन्स क्या? क्वालिटी. यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि जो बिल है, हैक ड्राइवर है, वो तारीफ कर रहा है लटकिन की उसकी डिसऑनेस्टी के लिए, बेईमानी की तारीफ कर रहा है. आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन ए पुलिसमैन ही वुड हैव कोट लटकिन्स रिस्पेक्टफुली. मैंने महसूस किया यदि वह एक पुलिस वाला होता. कौन पुलिस वाला होता? हैक ड्राइवर. तो वो लटकिन को गिरफ्तार करता, वो भी बड़े सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ. एंड जेल हिम विद रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स क्या? सॉरी. और पछताते हुए उसे जेल में डाल देता. बिल लेड मी इनटू फ्रिज. बिल मुझे लेकर के जाता है फ्रिज की दुकान पर. हैव यू सीन ओलिवर लटकिंस अराउंड टुडे. क्या तुमने आज ओलिवर लटकिंस को देखा है? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम. उसका दोस्त उसे ढूंढ रहा है. लुकिंग फॉर मीन्स क्या? सर्चिंग फॉर. सेड बिल चेयरली. चेयरली मीन्स क्या? मैरीली, हैप्पीली. बड़े खुश होते बिल ने कहा. फ्रिज लुक्ड एट मी. फ्रिज ने मेरी तरफ देखा. हाइडिंग बिहाइंड बिल. बिल के पीछे जो मैं छुपा हुआ था. ही हेजिटेटेड. हेजिटेटेड मीन्स क्या? रिलेक्टेंट. वेंट बैक. थोड़ा पीछे हटा, हिचकिचाया. एंड देन एडमिटेड. एडमिटेड मीन्स क्या? एक्सेप्टेड. और फिर उसने ये बात स्वीकार की. यस, ही वॉज इन हेयर ए लिटिल व्हाइल अगो. हाँ, वह थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था. गेस ही हैज गॉन ओवर टू गस्टाफ्स टू गेट ए शेव. अंदाजा लगाता हूँ कि अभी वह गस्टाफ्स के बार्बर जो है उसके यहाँ पर गया शेव कराने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए. वेल, इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. ठीक है, यदि वह आता है तो उसे बताना कि मैं उसे ढूंढ रहा था. वी ड्रो टू गस्टाफ्स बार्बर शॉप. हम चले गई घोड़ा गाड़ी चला करके गस्टाफ बार्बर जो था उसकी दुकान पर. अगेन बिल वेंट इन. दोबारा से बिल अंदर गया. And I lingered at the door. Lingered means क्या? Stayed back. पीछे रुका रहा. मैं दरवाजे पर ही मंडराता रहा, रुका रहा, खड़ा हो गया. He asked not only the Swede. Swede means क्या? जो स्वीडन के रहने वाले हैं वो लोग. उसने न केवल जो स्वेड थे उनसे पूछा, but two customers if they had seen Lutkins. परंतु दो ग्राहकों से भी पूछा क्या उन्होंने लटकिन को देखा है. The Swede had not. जो स्वेड था उसने नहीं देखा था. He said angrily. उसने गुस्से में कहा, I have not seen him and don't care to.
मैंने उसे नहीं देखा है और ना ही मैं इस बात की परवाह करता हूँ। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। परंतु यदि वह तुम्हें मिले तो तुम मेरे $35 भी उससे ले लेना जो उसने मुझसे उधार लिए हैं। One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street. जो ग्राहक थे उनमें से एक ने कहा कि वह सोच रहा है कि उसने लटकिन को देखा था गली में, मेन गली में नीचे जाते हुए। दिस साइड ऑफ द होटल, होटल के इस तरफ। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक, और जैसे ही हम वापस घोड़ा गाड़ी में बैठे, बिल कंक्लूडेड मीन्स क्या है, गेस्ट अंदाजा लगाया दैट सिंस लटकिंस had adjusted his credit at Gustav, कि जो लटकिंस है उसका जो क्रेडिट है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। एडजस्टेड मीन्स क्या, फिनिश हो गया है गस्टाफ के यहाँ पर। He had probably gone to Gray's for a shave, तो संभावना है कि वो ग्रे जो बार्बर है उसकी दुकान पर गया होगा शेव कराने के लिए। At Gray's barber shop we missed Lutkins only 5 minutes, और जो ग्रेज बार्बर था उसकी दुकान पर हमने लटकिन को मिस किया, चूक गए हम उसको पकड़ने से सिर्फ 5 मिनट की देरी में। He had just left, वह वहां से जा चुका था। Probably for the pool room मीन्स क्या, गैम्बल हाउस, और संभावना थी कि वह वहां से गैम्बल हाउस गया था, जुआगर गया था। At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes, और पूल रूम जाकर के पता चला कि वहां पर आया था वो सिर्फ एक पैकेट सिगरेट लेने के लिए। एंड गॉन आउट, और वह वहां से जा चुका था। सो वी परस्यूड हिम, इस तरह से हम उसके पीछे थे। परस्यूड मींस क्या, चेज्ड, उसका पीछा कर रहे थे। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, बिल्कुल उसके पीछे परंतु उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। 4 an hour till it was past 1 o'clock, और 1 घंटे तक अब यह 1 o'clock हो गया था। I was hungry, मुझे भूख लगी थी। But I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. परंतु मैं इतना अधिक आनंद उठा रहा था बिल के जो रफ वल्गर कंट्री के ओपिनियंस थे, विचार थे, गांव के बारे में उसके जो विचार थे, वल्गर रफ विचार थे उनके बारे में, उसके पड़ोसियों के बारे में। That I scarcely cared, scarcely means क्या, hardly, कि मैंने मुश्किल से इस बात की तरफ ध्यान दिया, whether I found Lutkins or not, कि मुझे लटकिन मिला कि नहीं मिला। Students, today we discussed till page number 49, and next pages we will discuss in next time video. Thank you.